myself Dr. Tushar Godpule. I am a pediatric endocrinologist and I welcome you to our YouTube channel Harmony in Health. Today we are going to talk about a very sensitive topic, and that is diabetes in children. If you know somebody in your family who has been diagnosed with diabetes, आपके फैमिली में, परिवार में कोई भी छोटा बच्चा जिसको डायबिटीज़ का निदान हुआ है, डायग्नोसिस हुआ है, you can imagine the problems that the child and the family is going to face. सबसे पहले तो एक छोटे बच्चे के साथ ये हादसा जब होता है, एक छोटे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस जब होता है, तो उस फैमिली के ऊपर एक जैसे कि पहाड़ टूट पड़ता है. The family is literally crushed with the emotional turmoil. They are full of questions. डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को ये डायबिटीज़ क्यों हुआ? मेरे ही बच्चे को डायबिटीज़ क्यों हुआ? डॉक्टर साहब, मैं और मेरी वाइफ को डायबिटीज़ नहीं है, फिर भी बच्चे को डायबिटीज़ क्यों हुआ? मेरी क्या गलती है? मेरी वाइफ की क्या गलती है? बच्चे की क्या गलती है? क्या मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई? Did I make some mistakes and as a punishment my child is getting this diabetes? Doctor, why insulin? Why are you pricking my child with insulin? Why not give him some tablets? Doctor, until when do you want me to check the blood sugars of this child? He is just a child. Why not give him some tablet? And lastly, doctor, ये इंजेक्शन कब तक देना है? तो इन सारे सवालों से वो फैमिली हमेशा जूझती है, and as a result the fabric of the family is disturbed and it can give rise to various psychological, social and mental problems. So today we are going to understand what is diabetes in children. The family is full of questions about the child's health and the prognosis, and to answer these questions scientifically correctly, one must understand how does diabetes happen in children. In previous episode, we have seen that there are various types of diabetes. The type 2 diabetes, which is common in adults, almost 8 to 10 adults suffer from type 2 diabetes. Whereas in children, the commonest type of diabetes is still type 1 diabetes. So type 1 diabetes, also called as the insulin dependent diabetes previously. So this type 1 diabetes is the most common variety of diabetes that happens between first birthday until 18th birthday. The common symptoms of type 1 diabetes are excessive thirst, excessive urination. The child is eating adequately. In fact, most of the times the child is hungry. Still, the child is losing a lot of weight, and as a result the child starts thinning out. कपड़े ढीले पड़ जाते हैं, बच्चा रात में पेशाब के लिए बार बार उठता है, बार बार पानी पीता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, अच्छे से खाना खा के भी वजन कम होता जाता है. These are the common symptoms of type 1 diabetes that happens commonly in childhood. ये type 1 diabetes के पीछे जो कारण है उसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी. ऑटो इम्यूनिटी यानी कि सेल्फ इम्यूनिटी. कल्पना कीजिए कि एक कॉलोनी में एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रही है और आपको लगा कि वो चोर है. आपने पुलिस थाने में फ़ोन किया और पुलिस आके उसको पकड़ के थाने में ले गई. जांच पड़ताल के बाद में पता चला कि ये संदिग्ध व्यक्ति चोर नहीं है बल्कि पुलिस की इन्फॉर्मर है. This is a classical case of mistaken identity. So similar thing happens in our body where the self-immunity or the autoimmunity is in action. So our immunity or our defense system is capable of identifying the own cells and the foreign cells. So the bacteria, the viruses, the fungi that attack our body, they enter our body through various portals like the nose, the oral cavity, the skin, and our body is constantly bombarded with various organisms.
But our immune system is capable of identifying these viruses, these bacteria, and is able to kill them with various mechanisms, such as the T cell mediated immunity, where the cells would directly march and attack those cells or those viruses, those bacteria, and kill them. And there is a form of immunity also called as humoral immunity, where the missiles will be launched and those viruses, those bacteria will be killed using something called as an antibody. So these are the two mechanisms with which the immune system works. But in a case of mistaken identity, the immune system will start producing antibodies against our own cells, and the T cells, the fighter cells, the soldiers of the body, will try and march into our own system and try and kill our own cells. So these kind of disorders are called as autoimmune disorders. The most common variety of autoimmune disorder is hypothyroidism, where the immunity is attacking our own thyroid cells, thereby the thyroid gland gets destroyed and the person is no longer able to make thyroid hormone. Similarly, if the beta cells of the pancreas, the cells that produce insulin, if they are targeted by our own immune cells, the killer T cells and various antibodies, various missiles that are targeted towards these beta cells, so over a period of weeks to months, these beta cells will be destroyed. Initially, imagine a smaller percentage of beta cells is destroyed, but the remaining portion would be working harder and making up for the loss that has happened in some beta cell function. But eventually the beta cell destruction continues, and there comes a time where almost 90 to 95% of the beta cells are destroyed, and as a result the blood insulin levels, the insulin levels in your blood actually goes down and the body is no longer able to make enough of insulin. तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब हमारी खुद की रोग प्रतिकार शक्ति खुद की बीटा सेल्स को यानी कि इंसुलिन बनाने वाली पेशियों को मार गिराती है, तो धीरे 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 खून में बनने वाला जो इंसुलिन है, खून में आने वाला जो इंसुलिन है, उसकी मात्रा कम होती है, एंड एज अ रिजल्ट द ब्लड ग्लूकोज विल स्टार्ट राइजिंग. खून के अंदर, शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना शुरू होगा. शुरुआती समय में जब खून के अंदर शुगर्स 150, पौने 200, 200 तक पहुंचते हैं, तब तक सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे. लेकिन जैसे ही खून के अंदर 200 के ऊपर शुगर पहुंचेगी, उसमें से कुछ शुगर यूरिन में से बाहर निकलना शुरू होगा. एंड दिस इज़ द टाइम द चाइल्ड विल स्टार्ट बेड वेटिंग. सम ऑफ द चिल्ड्रन विल स्टार्ट गोइंग टू द वॉशरूम वेरी फ्रिक्वेंटली. जो बच्चा रात में पेशाब के लिए उठता नहीं था, वो अभी 1 बार या 2 बार या 3 बार रात में यूरिनेशन के लिए उठना शुरू होगा. In the school, the child was not able to finish 1 water bottle. Now the child is requiring 2 or 3 liters of water in the school. The child often gets up during the school and has to go to the washroom. And ये symptoms कई बार नज़रअंदाज किए जाते हैं. The parents often complain that the child does not pay attention in the school, the child often goes to the washroom. These are the early indicators, early markers of type 1 diabetes, but they are often not picked up or neglected. And as a result, the sugars keep on rising. और ये शुगर्स जितने खून के अंदर बढ़ते हैं उतने यूरिन में से बाहर निकलते हैं. जो भी खाना बच्चा खा रहा है उसमें से जो ग्लूकोज बन रहा है वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और यूरिन में से बाहर चला जा रहा है. So the child is always hungry because the calories are not getting met, the requirements are not getting met, and he is passing virtually all the glucose that he has consumed through the food into the urine and out of your body. अब कुछ दिनों बाद ये जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वज़न कम होना दिखाई देता है, क्योंकि खून के अंदर जो ग्लूकोज है वो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है. एंड एज अ रिजल्ट द बॉडी विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग योर ओन प्रोटीन्स, योर ओन फैट स्टोर्स दैट आर देयर इन द टमी, द चीक्स, द buttocks. These fat cells store a lot of calories in form of fats, and these fats will be
यूटिलाइज्ड एज फ्यूल सोर्स। तो ये चर्बी जब जलना शुरू होता है तो कुछ मात्रा में कीटोन्स तैयार होते हैं। बहुत छोटी मात्रा में जब बॉडी में कीटोन्स तैयार होते हैं तो बॉडी को वो कीटोन्स हजम करना, कीटोन्स को यूटिलाइज करना आसान होता है। But when the ketones are made in very large quantities, the child will start showing symptoms of dehydration, abdominal pain, nausea, vomiting. These are the danger signs in a child with diabetes. But often these children come to us in a sick state, in a serious condition which is called as diabetic ketoacidosis, where the child is breathing very fast, the child is severely dehydrated, the child is vomiting, and this is the child that is going to require hospitalization and emergency treatment, and this condition is called as diabetic ketoacidosis. Unfortunately, in India, still the diagnosis of diabetes in children happens very late. हमारे समाज में बच्चों के डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इस सीरियस कंडीशन में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ एडमिट होते हैं और तब जाके बच्चों के डायबिटीज़ का पता चलता है। जब बच्चों में डायबिटीज़ का रोग निदान यानी कि डायग्नोसिस होता है तभी इन बच्चों में ब्लड शुगर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दीज चिल्ड्रन ऑफन कम टू अस विद शुगर्स ऑफ 400 और 500 और 600. In this critical condition, in this serious condition, the children are often admitted and they are given intravenous fluids and intravenous insulin. So, insulin के इंजेक्शन के और सलाइन के सहारे इन बच्चों का शुगर नियंत्रण में लाया जाता है। ये बच्चे 2 से 4 दिनों में ठीक महसूस करना शुरू करते हैं और इन बच्चों को सलाइन के सहारे और इंसुलिन के सहारे शुगर कंट्रोल करने के बाद स्किन में यानी कि चमड़ी में, त्वचा में इंसुलिन के इंजेक्शंस शुरू किए जाते हैं। अब जब इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू करने की बारी आती है तो पेरेंट्स हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर, मेरे बच्चे को इंसुलिन की क्यों ज़रूरत है? क्या इंसुलिन मुंह के सहारे या टैबलेट या सिरप के सहारे क्यों नहीं दिया जा सकता? बड़ा अहम सवाल है और जिसका जवाब जानने के लिए आपको इंसुलिन इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग थायराइड की गोली के बारे में जानते होंगे। थायराइड की हार्मोन की कमी जब होती है तो ये पेशेंट्स थायराइड की गोली खाते हैं और ये थायराइड की गोली खून में पहुंचती है, पेट के सहारे खून में पहुंचती है और थायराइड की मात्रा कंट्रोल की जाती है। लेकिन इंसुलिन जो हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। जो इंसुलिन का आकार है वो मॉलिक्यूल का आकार इतना बड़ा है कि वो पेट में जाने के बाद खून में पहुंच नहीं सकता है और पेट के अंदर जो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, इस इंसुलिन के मॉलिक्यूल के इस एंजाइम की वजह से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और ये टुकड़े खून के अंदर पहुंचते हैं। इंसुलिन को खून के अंदर पहुंच के शुगर्स को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का पूरा स्ट्रक्चर, एक साथ इंसुलिन का पूरा स्ट्रक्चर खून के अंदर पहुंचना ज़रूरी है। इंसुलिन के टुकड़े, अगर इंसुलिन के पीसेस खून के अंदर पहुंचते हैं तो वो इंसुलिन जैसा काम नहीं करेंगे और इसीलिए इंसुलिन की गोली आज तक बनी नहीं है। इंसुलिन एक इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है। अब जब बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट है तो इन बच्चों को नस में से डायरेक्टली खून के अंदर इंसुलिन दिया जाता है। जब बच्चों का कंडीशन स्थिर होता है, स्टेबल होता है, तो इन बच्चों को स्किन के अंदर इंसुलिन इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है। अब इंजेक्शन शुरू करने के बाद ये सवाल पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर, ये इंजेक्शन कितने बार देना है? क्या दिन में 1 बार देना है कि 4 बार देना है? तो एक स्वस्थ शरीर में, in a normal body, the body will make insulin in 2 fashions. One is called as a basal insulin. एक मिनिमम मात्रा में खून के अंदर इंसुलिन हमेशा होता है जो खाली पेट में, फास्टिंग स्टेट में शुगर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। तो when we are in a fasting state, the body will produce insulin at a very minimal rate and that is called as basal insulin. Whereas in a fed state, खाना खाने के बाद the body will make fast insulin, क्योंकि अगले 4 घंटे, अगले 5 घंटे खाना जब हजम हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, तो उस 4-5 घंटे के लिए खून के अंदर शुगर बहुत तेज़
आ रहा है और उसको नियंत्रण करने के लिए बॉडी को, बीटा सेल्स को बहुत फास्ट स्पीड से, बहुत तेज़ गति से इंसुलिन बनाना पड़ता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति अगर 3 या 4 बार खाना खाता है तो उसका शरीर 3 या 4 बार फास्ट इंसुलिन बनाता है, और खाली पेट में इन अ फास्टिंग स्टेट द बॉडी विल मेक समथिंग कॉल्ड एज अ बेसल इंसुलिन, जो कि एक मिनिमम क्वांटिटी में इंसुलिन बनाया जाता है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में या बच्चों के डायबिटीज़ में जब इंसुलिन बनने की प्रक्रिया बंद हो चुकी है तो इन बच्चों को बाहर से इंसुलिन इन 2 किस्म से देना पड़ेगा। जब बच्चे खाली पेट है तो उनके शरीर में मिनिमम मात्रा में इंसुलिन होना चाहिए, जिसके लिए हम बेसल इंसुलिन जैसे कि इंसुलिन ग्लार्जिन, इंसुलिन डेग्लुडेक, इस प्रकार की इंसुलिन की इंजेक्शन से 24 घंटे एक स्थिर मात्रा में बेसल क्वांटिटी में इंसुलिन को दिया जाता है। और ये बच्चा जितने बार खाना खाने वाला है, फिर चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो या फिर छोटा सा स्नैक क्यों ना हो, तो जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है उस खाने के लिए आपको बाहर से इंसुलिन देना ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ द चाइल्ड इज़ ईटिंग 3 मील्स इन अ डे, द चाइल्ड विल रिक्वायर 3 इंसुलिन इंजेक्शंस फॉर दोज meals and 1 injection that gives rise to a basal state of insulin, which is called as the basal insulin. So in short, a child who is suffering from type 1 diabetes will require minimum 4 pricks of injections per day. 3 of those will be for the meals and 1 will be for the 24 hours. So कुल मिला के कम से कम 4 बार इंजेक्शन टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों को लेना ज़रूरी है उनके शुगर्स को नियंत्रण में लाने के लिए। ये तो हो गया इंसुलिन इंजेक्शंस के बारे में। अब पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि कितना इंसुलिन लगाना है? मान के चलिए शुगर 70 है तो इंसुलिन का डोज अलग होगा। खून के अंदर शुगर की मात्रा 200 है तो इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। 300 शुगर के लिए और ज़्यादा इंसुलिन देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, द डोज ऑफ इंसुलिन विल डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स. One is the current sugar and the second one is the quantity of food and the kind of food the child is going to have. अब बिना चेक किए हुए पेशेंट का या बच्चे का चेहरा देख के खून के अंदर शुगर कितना है इसका पता नहीं चलता है, और जिसके लिए इन बच्चों को हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि एक ग्लूकोमीटर के सहारे खुद घर ही पे शुगर चेक करना सीख ले, जिसको हम कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज या फिर SMBG। SMBG के सहारे बच्चे के खून के अंदर शुगर कितनी है इसकी जानकारी पेरेंट्स को मिलती है, और जो शुगर रीडिंग देख के इंसुलिन का डोज एडजस्ट करना बड़ा आसान है। तो इसके लिए मेरी सबसे विनती है कि अगर आपके फैमिली में कोई छोटा बच्चा है जिसको डायबिटीज़ है तो उनको सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज ज़रूर सिखाए, जिसमें बच्चा कम से कम 8 या 9 साल के बच्चे या उसके ज़्यादा उम्र के बच्चे खुद के हाथ से शुगर चेक करना और इंसुलिन लगाना कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि बच्चों में होने वाला जो प्रमुख डायबिटीज़ है इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, और इस एपिसोड में हमने ये देखा है कि बच्चों में जो डायबिटीज़ होता है, जो टाइप 1 प्रकार का होने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है, because type 1 diabetes is the most common type of diabetes in children. इसमें इंसुलिन वक्त पे लेना, शुगर वक्त पे चेक करना, वक्त पे खाना खाना, इन 3 चीज़ों से अगर ये डिसिप्लिन आप फॉलो कर पाते हो तो ये बच्चे एक 100 साल की स्वस्थ ज़िंदगी ज़रूर जी सकते हैं, एंड दे कैन लीड ए वेरी वेरी नॉर्मल, हेल्दी, हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ। बट for them to get adapted to these injections, the role of family is of utmost important. If the family is very very supportive, if the mother is always smiling while giving the injection, then the fear of the injection is very less in the mind of the child. If the family is tensed all the time, if the child can sense fear on the mother's face, then this fear is also transferred onto the baby. So it is very important for the family to be together. They should understand what is the problem. They should learn about type 1 diabetes. सिर्फ मम्मी
या सिर्फ पापा ने इंजेक्शन सीखना ज़रूरी नहीं है। फैमिली के सभी सदस्यों को इंसुलिन इंजेक्शन कैसे लगाते हैं और शुगर कैसे चेक करते हैं ये सीखना बड़ा आवश्यक है। बीमार अवस्था में when these children are going to get sick, जैसे बाकी बच्चे एक साल में 3 या 4 बार बुखार सर्दी के साथ बीमार होते हैं, डायबिटीज़ वाले बच्चे भी साल में 3 या 4 बार बीमार होंगे। इस बीमार अवस्था में बच्चों को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। बीमारी के अवस्था में, बुखार में, सर्दी खांसी में, उल्टी में, जुलाब में उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड्स देना ज़रूरी है। और इस बीमारियों में शुगर बार बार चेक करके इंसुलिन के डोज को एडजस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर बीमार अवस्था में सही से उनकी देखभाल की जाए, इंसुलिन के डोज अच्छे से दिए जाएं, तो इन बच्चों को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की अवस्था नहीं होती है। मैं इस एपिसोड में जो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ का ओवरव्यू दे रहा हूँ, इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। टाइप 1 डायबिटीज़ ये बीमारी सदियों से पता है। 1922 के पहले बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी पैथीज़ अवेलेबल थी, बहुत सारे डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी अवेलेबल थी, लेकिन 1922 से पहले इस बीमारी का इलाज संभव नहीं था। It was only in 1921 and 22 when two scientists called as Dr. Banting and Dr. Best, they discovered the magical molecule called as insulin, and after the discovery of insulin, these children were able to survive and grow and lead a wonderful life. So मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप स्टोरी ऑफ इंसुलिन को पढ़ें, इंसुलिन से दोस्ती करें। इंसुलिन इंजेक्शंस सेफ़ है, इंसुलिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंसुलिन आपके बच्चे को ज़रूरी है उसके शुगर्स को कंट्रोल करने के लिए, और इंसुलिन इंजेक्शन लगाने से अच्छी तरीके से शुगर्स को कंट्रोल किया जाता है और अच्छे शुगर कंट्रोल के साथ आपका बच्चा एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकता है। So this was the overview about diabetes in children. In next few episodes we will discuss in detail about how to check the sugar, what dietary precautions one has to take for these children, how to take care in the sick days, and what precautions do they have to take during traveling, etc. To know more about this, please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel Harmony in Health. Until then, goodbye.